Hello everyone, welcome to my channel Not So Ready-Made. Today we'll start with the current affairs of the month January 2020 and this is part 1. We'll start with a series of MCQs and this is how you'll be analyzing your performance. Let's start with the first question now. Who can pass the orders of internet shutdown and under which act? A. The rules issued under the Indian Telegraph Act 1884. Actually, this act is of 85, so this is not right, and so A can be eliminated from the correct statements. Only B or none of the above. So let's read the B statement. Only the Home Secretary of the Union or a state can pass an order. The order can or cannot include the reasons for the decision. No, the second part of this sentence is not correct. The order can or cannot include the reasons for the decision. It has to include because the Act of 1885 says that the order must include the reasons for the decision and will be after it is issued will be passed to review committee for being reviewed by a committee within 5 days, and it will see that whether it is complying with section 5 of the Telegraph Act or not. So the answer is none of the above. Let's move on to our second question quickly. Which of the following statement or statements is or are not correct? A. Iran is, let's read it again, not correct. Okay, fine. Not, let's highlight it. Not correct. Iran is one of the countries in the world to have a small population of Asiatic cheetahs. See, Iran is not one of the countries, it is the only country in the world to have a small population of Asiatic cheetahs. So, this is incorrect, and hence we know only A or ABC are will be one of these will be our answer. So B, the IUCN Red List classifies the species as critically endangered globally. हाँ, this sentence is correct. C कह रहा है CASA stands for Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area in Southern Africa, which hosts roughly 20% of the global cheetah population. Yes, the cheetah was officially declared extinct from India in 1952. This is also correct because it was declared extinct in 1952 and was last spotted in 1947. चीता ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एनटीसीए ने मतलब बोला था कि अफ्रीकन चीता ट्रांसलोकेट किए जाएंगे इंडिया में नामीबिया से और दे विल बी केप्ट एट नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एमपी में है. आईयूसीएन ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया था. नो वाज गिवन नो ऑब्जेक्शन बाय आईयूसीएन और 2009 का प्लान था एक्चुअली. ये 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था डिसीजन जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने लिया था कि कूनो पालपुर में रखेंगे. चीता जो अफ्रीकन चीता है वो भी वनरेबल है आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर और चीता जो होता है वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल होता है तो ऑफ कोर्स इसको ये बहुत ज़्यादा हंट किए जाते थे राजा महाराजाओं से. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अभी मैंने नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया. सो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है. एब्सोल्युटली करेक्ट. नामीबिया से यहाँ पर अफ्रीकन चीता लाए जाएंगे. कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, भी मैंने बताया कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में उसको रखा जाने की बात हुई थी 2013 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी थी. वेलवादा नेशनल पार्क गुजरात में है, ये भी सही है. और शाहगर बल्ज राजस्थान में, ये भी सही है. तो हमारा आंसर हो जाता है ए. एक्चुअली शाहगर बल्ज जो है वो चिनकारास की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बोस्ट करता है और ये बहुत ही आइडियल स्पॉट माना जाता है बीस्ट के लिए. वेलवादा नेशनल पार्क जो है गुजरात में वो ब्लैक बक्स के लिए फेमस है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which states which of the following statement or statements is or are correct. A. Trophic level refers to the each of several hierarchical levels in an ecosystem consisting of organisms sharing the same function in the food chain and the same nutritional relationship to the primary sources of energy. ये statement एकदम सही है. ये टॉपिक लेवल की एक्चुअली आप डेफिनेशन की तरह भी कोट कर सकते हैं. चिनकारा इज अगर मेंस में आता है. बी. चिनकारा इज फाउंड इन प्लेन्स एंड लो हिल्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू. हाँ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया राजस्थान में है वो शाहगर बल्ज. तो आप बता सकते हैं कि मतलब राजस्थान के में पाया जाता है चिनकारा. तो ये बी स्टेटमेंट तो एकदम सही होगा. और सी स्टेटमेंट कह रहा है बिश्नोई ऑल्सो नोन एज बिश्नोई इज अ हिंदू रिलीजियस सेक्ट फाउंड इन वेस्टर्न थार डेजर्ट एंड नॉर्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. बिश्नोई कम्युनिटी एक्चुअली सेक्रेड मानती है इनको. तो आंसर हो जाएगा ए बी सी. तो जो इनके विलेजेस होते हैं उसमें चिनकारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में पाए जाते हैं. मतलब 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको रफली 14 मिल सकते हैं.
Fifth कह रहा है क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट स्कीम allows agencies, they could be private companies, village, forest communities to identify land and begin growing plantation. ये एकदम सही है. सेकंड कह रहा है इट अलाउज फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कमोडिटी. ये भी एकदम सही है. ये इसके एडवांटेजेस की तरह भी गिना जाता है. थर्ड है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ स्कीम इज बीइंग नोटेड. ये गलत है क्योंकि 2015 में एक्चुअली रिकमेंड कर चुका था ग्रीन क्रेडिट स्कीम के अंडर एक डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि अप्रूव नहीं किया गया था यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि वो ही फाइनल अथॉरिटी रखता है इसको वो करने के लिए. तो 1 and 2 विल बी द आंसर. लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. 6. It states, consider the following statements regarding National E-Mobility Mission Plan 2020. National E-Mobility Mission Plan 2020 was launched by GOI in 2013. ये सही है. E-mobility से पता चल रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है. प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड वेसल्स, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक है. तो सेकंड भी सही है. थर्ड कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री फॉर्मुलेटेड अ स्कीम फास्ट adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India, FAME India scheme in year 2015. हाँ ये भी एकदम सही है. तो तीनों सही है 1, 2 and 3. हुआ ये था कि फेम इंडिया के अंडर फेज 1 में बात हुई थी 2 साल के लिए इसको करने की, क्योंकि इसमें 4 फोकस पॉइंट थे. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो फेज 1 एक्सटेंड हुआ था 2019 तक 2015 से, और इसमें मेन प्रॉब्लम थी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में. फेज 2 में उसे इंप्रूव करने की बात हुई थी. 7 आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज पब्लिश्ड अ नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 450 रेयर डिजीजेस. इंडिया में एक्चुअली 450 रेयर डिजीजेस पाई जाती हैं रफली, और मोस्ट कॉमन रेयर डिजीज इंक्लूड हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा. ये भी सही है. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. A rare disease is a health condition of low prevalence that affects a small number of people compared with other prevalent diseases in a general population. हाँ ये सही है कि ये बहुत कम लोगों को अफेक्ट करती है, बट एक ओवरऑल ग्लोबली इनकी पॉपुलेशन देखा जाए तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती हैं. इसलिए इनके लिए पास हो रहे थे लॉज काफ़ी जगह पे, इंडिया में भी हुए. थ्रू रेयर डिजीजेज आर लो प्रिवलेंस, दो रेयर डिजीजेज आर ऑफ लो प्रिवलेंस एंड इंडिविजुअली रेयर, कलेक्टिवली दे अफेक्ट अ कंसिडरेबल. यही बात मैंने प्रीवियस पॉइंट में स्टेट करी कि कंसिडरेबल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी कंट्री वो इफेक्ट होती है इससे. विच अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल रिसर्च इज बिटवीन 15 to 18%. ये गलत है. 15 to 18% नहीं है, 6 to 8% है इसका आंसर. तो नॉट करेक्ट में फोर्थ आ जाता है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको एक लिंक भेज दूंगी जो कि बता देगी कि एक इस पे एक डॉक्यूमेंट है काफ़ी बड़ा सा, तो वो मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उससे पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी डिटेल वे में समझाता है रेयर डिजीज के बारे में. 8 क्वेश्चन कह रहा है चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में. गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया विच प्रोवाइड्स फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, health checkup and referral services to children under 6 years of age and their mothers. The scheme was launched in 1975. Both of these statements are correct. इसमें जो बात हो रही थी वो हो रही थी कि रिवैम्प करी जाएंगे ICDS स्कीम इन अर्बन एरियाज में. सेंटर ने ये बोला था. 9th में जाते हैं. Which of the following is or are correct? Children in urban areas were overweight and obese as indicated by SSFT for their age. True. The first ever pan India survey ने highlight किया था malnutrition urban area के बच्चों में. True. A higher prevalence of obesity along with iron and vitamin D deficiency. सही है. ये तीनों ही सही है. Revamp इसीलिए urban areas में बोला गया था. 10. Which of the following is not true about coronavirus? Coronavirus are zoonotic. They cannot infect human beings. They cannot infect human beings. Of course, ये गलत है इसके बारे में. और बाकी सारे स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं. There are 7 strains of. कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 7 strains of human coronaviruses कौन कौन से होते हैं. That can be asked in exam. और इसमें मेनली ये था कि बहुत ज़्यादा जो भी नंबर है 14 लाख आंगनवाड़ीज, उनमें से बस सिर्फ 1.3 लाख आंगनवाड़ीज अर्बन एरियाज में. ये आप कोट कर सकते हैं मीन्स में इन केस अगर क्वेश्चन आता है. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स who are preparing for UPSC prelims. I hope this will help you revise your January current affairs. Thank you. See you again. Bye.